Hello students, this is our 11th chapter, Enhancement of Food Production. In today's video, we are going to study about, in the previous part, we were studying about the steps or the processes, what is involved in sewage treatment, the basic steps. In that, first we have completed preliminary treatment. उसमें दो टाइप्स थे, एक था स्क्रीनिंग और दूसरा था ग्रिड चेम्बर. वी हैव completed this. In the second one is primary treatment, जिसे physical treatment बोलते हैं. Even we have completed our primary treatment. From the third part, that is the secondary treatment, or we called as biological treatment, we have completed a third treatment also. Then fourth and the last was tertiary treatment. Once the BOD क्या था स्टूडेंट्स, हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़े थे. BOD is biochemical oxygen demand. Once the BOD of waste water is reduced, it is passed into a settling tank. उसका BOD रिड्यूस होने से उसको सेटलिंग टैंक में पास कर देते हैं. Here the bacterial flocks are allowed to sediment. जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स है वो लोग सेडिमेंट करते हैं. द सेडिमेंट इज नाउ कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज. स्मॉल पार्ट ऑफ दिस इज पास्ड बैक इनटू एडिएशन टैंक and the major part is pumped into the large tank called anaerobic sludge digester. In this tank, aerobic bacteria grow. In the large tank, anaerobic bacteria grow and digest the bacteria and fungi in the sludge. Clear with this? During this anaerobic digestion, gases such as methane, hydrogen sulfide, CO2 etc. ये सारे anaerobic gases produce होते हैं. Effluents from this plant after chlorination and released in nature water bodies like rivers and streams. Chlorination kill pathogenic bacteria. Digested sludge is then disposed. तो ये था नेक्स्ट और फाइनल ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट. नाउ we will study a new topic, that is microbes in energy generation. एनर्जी जनरेट करने में, आई विल रिपीट, एनर्जी को जनरेट करने में भी माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा पार्ट है. ओके, सो many developing countries like are encouraging for installation of biogas to meet out the requirement of energy. Biogas is used as a domestic as well as industrial fuel. बहुत ज़्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है आजकल की, they are encouraging for installation of biogas to meet out the requirement of energy. बायोगैस क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो सके. Biogas is used as a domestic as well as industrial fuel. Clear with this? बायोगैस को as domestic और industrial fuel के जैसे भी यूज़ करते हैं. It is non-conventional and renewable source of energy. Non-conventional भी है. It is even non-conventional and renewable source of energy and is obtained by microbial fermentation. मतलब माइक्रोब्स फर्मेंटेशन करते हैं इसलिए ये प्रोड्यूस हो रहा है. बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, CH4, CO2, H2S and other gases in traces. Mixture of
मीथेन, मीथेन इज CH4, CO2 30 to 40% होता है, H2S 0 to 3% है, एंड अदर गैसेस जैसे CO, N2, H2, ये सारे गैसेस भी होते हैं. Biogas is highly inflammable and is used as a source of energy. Biogas is highly inflammable and it is used as a source of energy. Then plant waste, animal waste, domestic waste, agricultural waste, municipal waste, forestry waste, etc. are commonly used for the production of biogas. As the plant waste, animal waste, domestic waste, agricultural waste, ये जितने भी टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं इन सब में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस अवेलेबल होती है. तो ये सारे वेस्ट का यूज़ करके एक बायोगैस प्रोडक्शन होता है. कैटल डंग इज़ मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड सबस्ट्रेट फॉर बायोगैस प्रोडक्शन and it is a rich source of cellulose from plants. Cattle dung is the most commonly employed substrate for biogas and it is very rich of cellulose from plants. It is rich in cellulose from plant and cattle dung is most commonly employed. बायोगैस में किस किस टाइप का वेस्ट है? एनिमल वेस्ट है, एनिमल प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, फॉरेस्ट्री वेस्ट, एक्सेट्रा. देन बायोगैस प्रोडक्शन. Most commonly used models of biogas plants are KVIC and IARI. KVIC and IARI ये दो मोस्ट कॉमनली बायोगैस मॉडल्स हैं. द डाइजेस्टर यूज्ड फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इज कॉल्ड बायोगैस प्लांट. A typical biogas plant using cattle dung as a raw material consists of digester and gas holder. Digester is made up of concrete bricks and cements or steel. ये डाइजेस्टर जो होता है ये सिलेंड्रिकल गैस होल्डर है और गैस टैंक है अबव इट टू कलेक्ट गैसेस. डाइजेस्टर हैज़ अ साइड ओपनिंग, एक साइड ओपनिंग है उसमें जिसे चार्ज पिट बोलते हैं, इनटू विच रॉ मटेरियल्स एज काउ डंग इज फेड. द डाइजेस्टर इज पार्टली बरीड इन द सॉइल. बायोगैस का प्रोडक्शन किस तरीके से हुआ है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स ऑफ बायोगैस कौन से हैं? KVIC एंड IARI. इन दोनों का फुल फॉर्म यू गाइस सर्च दिए फुल फॉर्म. अब जो बायोगैस प्रोडक्शन जिसमें होता है, जिस डाइजेस्टर है उसे बायोगैस प्लांट बोलते हैं. अ टिपिकल बायोगैस प्लांट using cattle dung as a raw material consists of digester and gas holder. मतलब एक जो टिपिकल बायोगैस प्लांट होता है वो क्या यूज़ करता है? कैटल डंग यूज़ करता है, कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टर एंड द गैस होल्डर. डाइजेस्टर इज मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक्स एंड सीमेंट और स्टील. इट इज़ सिलेंड्रिकल गैस होल्डर और गैस टैंक, क्योंकि इसके अंदर ये सिलेंड्रिकल शेप्ड है, गैसेस होती है तो ये गैस सिलेंड्रिकल गैस होल्डर बोलते हैं या इसे गैस टैंक बोलते हैं बिकॉज इट कलेक्ट गैसेस. डाइजेस्टर हैज़ अ साइड ओपनिंग, इसके साइड में ओपनिंग्स होती है जिसे चार्ज पिट बोलते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल जैसे काउ डंग जो वो डाला जाता है. डाइजेस्टर इज़ पार्टली बरीड इन द सॉइल. दिस इज क्लियर. Anaerobic digestion involves 3 processes. Anaerobic digestion के 3 प्रोसेस है. एक है हाइड्रोलाइसिस और सल्यूबलाइजेशन. इन इनिशियल स्टेज रॉ मटेरियल, एकदम स्टार्टिंग में जो इनिशियल स्टेज में
जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे हमारा काउ डंक है, तो is mixed with water in equal proportion to make slurry which is then fed into the digester. जितना काउ डंक है उतना ही वाटर, इन दोनों को मिक्स करते हैं. मिक्स क्यों करते हैं? ताकि ये स्लरी बन सके. ओके, स्लरी बन सके और फिर इसको डाइजेस्टर में डालते हैं. यर एनारोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया, for example Clostridium pseudomonas, anaerobic hydrolytic bacteria, anaerobic hydrolytic bacteria, example Clostridium or Pseudomonas, hydrolyze carbohydrate into simple sugar, protein into amino acid and lipid into fatty acid. प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? अमाइनो एसिड, और लिपिड into fatty acid. This is hydrolysis. सेकेंड है एसिडोजेनेसिस. एसिडोजेनेसिस में क्या होता है? इन दिस स्टेज facultative anaerobic acidogenic bacteria and obligate anaerobic organism converts simple organic material into acids. एसिड जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, H2 एंड CO2. जितने भी ये एनारोबिक बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म है, ये लोग सबका कन्वर्जन होता है इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड देन इनटू एसिड्स. एसिड लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, H2, CO2 एक्सेट्रा. फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है? मिथोजेनेसिस. थर्ड स्टेप का नाम है मिथोजेनेसिस. मिथोजेनेसिस में क्या हो रहा है? दिस इज़ द लास्ट स्टेज इन विच एनारोबिक मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया लाइक मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकॉकस कन्वर्ट एसिटेट. इसमें क्या होता है? लास्ट स्टेज है जिसमें एनारोबिक मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, एनारोबिक मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जैसे मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकॉकस, ये बैक्टीरिया अपने आप को कन्वर्ट करते हैं इनटू एसीटेट, H2 एंड CO2, मीथेन, CO2 एंड H2O एंड अदर प्रोडक्ट्स. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एसिडिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू मीथेन. फिर फॉर्मिक एसिड है CH4, C3, CO2 और H2O में कन्वर्ट हुए. फिर CO2 है, ये CO2 एंड 4H2 है, तो ये CH4 और हमारी मीथेन है और वाटर में कन्वर्जन हुआ इनका. तो ये थर्ड स्टेप क्या है? मिथेनोजेनेसिस. दिस इज़ द इमेज ऑफ अ बायोगैस प्लांट. यहाँ पे डाइजेस्टर विच इज़ बरीड इन द ग्राउंड. इसके बाजू में है चार्ज पिट जहाँ पे डंक वाटर जो हमने स्लरी बनाया है वो डालते हैं. ओके, देन यहाँ पे गैसेस है, डाइजेस्टर है, ये स्लज है, गैस होल्डर, फिर ये ऊपर के पाइप से बायोगैस बाहर आता है. सो दिस इज़ द बायोगैस प्लांट. दिस डायग्राम इज़ वेरी important. It have been asked in the papers for many times. Then what are the benefits? It is a cheap, safe and renewable source of energy. बायोगैस बहुत ही चीप है, बहुत ही सेफ है और बहुत ही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. इट कैन बी ईजीली जनरेटेड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड. इसे ईज़िली हम लोग जनरेट भी कर सकते हैं, इसीलिए इसे स्टोर भी कर सकते हैं एंड ईज़िली इसका ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं. सो ये है फर्स्ट बेनिफिट ऑफ बायोगैस. सेकेंड बेनिफिट क्या है? इट कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लाइटनिंग, कुकिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग as well as small scale industries. स्मॉल स्केल पे भी इसका प्रोडक्शन हो जाता है.
So therefore it is very benefited in this case. Third, it burns with blue flame and without smoke. इसमें ब्लू फ्लेम होती है एंड इसमें कोई स्मोक नहीं होता. फोर्थ, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन ऑफ द सराउंडिंग. सराउंडिंग की सैनिटेशन को प्रॉपर करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ इको फ्रेंडली एंड डज नॉट कॉज पोल्यूशन एंड इम्बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट. बहुत ही इको फ्रेंडली है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं है. इट इज़ वेरी मच बैलेंस्ड फॉर द इन्वायरमेंट और कोई भी इम्बैलेंस, कोई भी पोल्यूशन इसके वजह से नहीं स्प्रेड होता. स्लज विच इज़ लेफ्ट ओवर इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र. जो स्लज है, जो कि लेफ़्ट ओवर पार्ट है, तो लेफ़्ट ओवर स्लज को वापस से रीयूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र. तो ये थे इसके 5 बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस. दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. एग्ज़ाम्स में पूछा है फॉर मेनी टाइम्स इन शॉर्ट आंसर्स एज वेल एज इन लॉन्ग आंसर्स. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Role of microbes as biocontrol agents. The term biocontrol refers to the use of biological method to control diseases and pests. जो biocontrol का term है, it is referred to the use of biological method and it is also used to control diseases and pests. The natural method of eliminating and controlling insects, pests and other disease-causing agent is by using their natural biological enemies, and this is called biocontrol or biological control. What does it mean? जो term है biocontrol, what does it refers to? It refers to control of diseases and pests. कि डिजीज़ेज़ और पेस्ट का कंट्रोल करें. जो नेचुरल मेथड है ऑफ एलिमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग इंसेक्ट, पेस्ट एंड अदर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट is by using the natural biological enemies. This is called biocontrol and बायोलॉजिकल कंट्रोल. या तो इसे बायो कंट्रोल बोलते हैं या तो बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं. Here we get the point. Question write about biological control करके भी आ सकता है. Okay. Then now we understood what is biological control. जो पेस्ट और डिजीज़ेज़ या इंसेक्ट को कंट्रोल करना या उन्हें एलिमिनेट करना is biological control या फिर bio control. The agents which are employed for this are called biocontrol agents. Agents जो इसलिए employ किए गए हैं उन्हें हम लोग biocontrol agents बोलते हैं. Microbes are one among them. Microbes क्या है? Microbes भी उनमें से एक agents ही है. This microbe include bacteria, fungi, viruses and protozoas. Microbes as biocontrol agents act in 3 ways. माइक्रोब्स कैसे एक्ट करते हैं? माइक्रोब एक्ट एज 3 ways. आइदर दे कॉज द डिजीज टू द पेस्ट और कंप्लीट और किल देम. Chemicals, insecticides and pesticides are extremely harmful to human beings and also pollute our environment. Hence, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. Clear with this? जो agents है which are employed for this are called biocontrol agents. Microbes भी एक biocontrol agents है. अब ये माइक्रोब्स क्या इंक्लूड करते हैं? जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, वायरसेस हो गए, प्रोटोजुआज हो गए. ये सारे क्या है? ये सारे भी एक टाइप के माइक्रोब्स हैं. माइक्रोब एज बायोकंट्रोल एजेंट एक्ट इन 3 ways. 3 वे में ये लोग अपना काम करते हैं.
आइदर दे कॉज द डिजीज़ टू द पेस्ट को ये डिजीज़ दे देते हैं, फिर उन्हें कंप्लीट या फिर उन्हें मार देते या उन्हें किल कर देते हैं. केमिकल, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड. केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड are extremely harmful to human beings and also pollute our environment. Hence, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. Clear with this? यह है role of microbes as biocontrol agents. Then, what are the examples of microbial biocontrol? First है Bacillus thuringiensis, BT. BT is used to get rid of butterfly caterpillars where dried spores of Bacillus thuringiensis are mixed with Bacillus thuringiensis is used to get rid of butterfly caterpillar where dried spore of Bacillus thuringiensis are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees. These spores are then eaten by the insect larvae. In the gut of the larvae, the toxin, that is cryprotein, is released and the larvae get killed eventually. ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो है आर फ्री लिविंग फंगाई. दे आर द फ्री लिविंग फंगाई विच आर फाउंड इन द रूट इकोसिस्टम. रूट इकोसिस्टम क्या है हमारा? राइजोस्पियर्स है. तो ये लोग राइजोस्पियर्स पे फाउंड होते हैं. दिस आर इफेक्टिव as biocontrol agents. They are very effective as biocontrol agents of several soil-borne fungal plant pathogens. The fungus produce substances like viridin, gliotoxin, gliovirin, etc. that inhibit the other soil-borne pathogens attacking root, rhizosomes, etc., causing root diseases. What does that means? जो हमारा ट्राइकोडर्मा स्पीशीज है ये फ्री लिविंग फंगाई है विच इज़ फाउंड इन द रूट इकोसिस्टम जो कि राइजोस्पियर है. ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है एंड इज़ यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट्स फॉर सेवरल सॉइल बॉर्न फंगल प्लांट. बहुत ज़्यादा जो सॉइल बॉर्न फंगल प्लांट पैथोजेंस है उनके अगेंस्ट में इन्हें यूज़ करते हैं. ये जो फंगस है ये प्रोड्यूस करता है सब्सटेंसेस. दिस फंगस प्रोड्यूस सब्सटेंसेस लाइक विरिडीन, ग्लियोटॉक्सिन, ग्लियोविरिन, एक्सेट्रा. ये क्या करते हैं? ये सब्सटेंसेस जो है दैट इनहिबिट द अदर सॉइल बॉर्न पैथोजेंस. दूसरे जो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस है उन पे अटैक करते हैं एंड देन दे अटैक रूट, rhizomes, etc., causing rot diseases. Clear with this? Then 4 groups of biocontrol agents are known. 4 biological agents है या biocontrol agents है जो कि है बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोआस. बैक्टीरिया हो गया हमारा, फंगाई हो गया, वायरसेस है और क्या है? फोर्थ है प्रोटोजोआ. तो ये क्या है? दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल. ये एग्जाम्पल्स पूछता है एंड दिस एग्जाम्पल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. राइट एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल बोल के क्वेश्चन आएगा एंड दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द पेपर्स ऑल्सो. नॉट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस बट इन शॉर्ट में पूछता है. या फिर राइट अ नोट ऑन बायो कंट्रोल एजेंट्स आएगा
तो भी you have to write this whole answer with examples. फिर we have to study microbial pesticides and their hosts. तो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड कौन से हैं और उनके होस्ट कौन से हैं? द कोरिलेशन इज डिपिक्टेड एज पर द फॉलोइंग टेबल. What we are studying? Microbial pesticide and their host. So coming to the table, ये है microbes and their host. तो फर्स्ट है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में है बैसिलस थोरोजिनियसिस, जिसे बीटी भी बोलते हैं. बैसिलस थोरोजिनियसिस, जिसे बीटी बोलते हैं, या बी पेपिले एंड बी लेंटीमॉर्बस. ये सारे बैक्टीरिया है. होस्ट कौन है इनका? कैटरपिलर्स, कैबेज वॉर्म, अडल्ट बीटल्स एक्सेट्रा. ये लोग कहाँ पे रहते हैं? कैटरपिलर्स पे रहेंगे, या तो कैबेज वॉर्म्स में है, या तो अडल्ट बीटल्स है एक्सेट्रा. ये सारे इनके होस्ट हैं. बैक्टीरिया हो गया. फंगाई की बात करेंगे तो बियोवेरिया बेसियाना, ये फर्स्ट है. सेकंड है एंटोमॉफ्थोरा. थर्ड है पैलिडा रोजियम एंड फोर्थ इज ज़ोप्थोरा रेडिकेंस. ये हो गया फंगाई. इनके होस्ट है अफाइड क्रॉकी. सेकेंड इज ए अनग्विक्यूलाटा, माइली बग्स जो होते हैं वो, माइट्स, वाइट फ्लाइज एक्सेट्रा. प्रोटोजोआ में है नोज़िमा लेकोस्टे. होस्ट इज ग्रास हॉपर, कैटरपिलर्स एंड crickets. Crickets are also a type of fly only. Fourth is viruses. वायरसेस में कौन है? न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, जिसे NPV बोलते हैं. एंड सेकेंड इज ग्रैन्युलोवायरस, जिसे GV बोलते हैं. फर्स्ट कौन सा? न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, एंड सेकेंड है ग्रैनुलोवायरस, जिसे GV एंड NPV. इसका होस्ट है कैटरपिलर्स and gypsy moth, ants, wasps and beetles. तो ये सारे what we have studied now are the pathogens and the host, microbial pesticides and their host थे ये. Now we will study about herbicides, that is bioherbicides. Weeds are the unwanted plant that grow in agricultural fields. Weeds क्या होते हैं? Weeds जो प्लांट के ऊपर ज़बरदस्ती कैसे ग्रोइंग पार्ट जैसे होते हैं, weeds बोलते हैं उसे. अनवांटेड प्लांट है वो. That grow in agricultural field, ponds, lakes, etc. Weeds compete with the main crop in the farmland. वो किसके साथ compete कर रहा है? With the main crop जो कि हमारे farmland में है. For water, space, minerals, light, air, etc. And also act as collateral host for several pathogens. Weeds is the unwanted plant that grow in agricultural field, ponds, lakes. अब वो ग्रो तो हो गया, पर वो compete भी करता है हमारे प्लांट्स के साथ, क्योंकि उसको भी लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, स्पेस चाहिए, मिनरल्स चाहिए, लाइट चाहिए, एंड ऑल्सो
act as collateral host for several pathogens. Microbes are also used as herbicides. माइक्रोब को हर्बिसाइड के रूप में भी यूज़ करते हैं. Many dicot herbs that grow in the field of cereals as weed. बहुत सारे जो डाइकॉट हर्ब्स होते हैं जो फील्ड ऑफ सीरियल्स में ग्रो करते हैं एज वीड कैन बी किल्ड बाय सर्टन माइक्रोब्स. They can be killed by certain microbes. For example, then microbial herbicide and their host. ये आ गया what are the microbial herbicide and their host. यहाँ पे हम लोग उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे. तो पहला है पैथोजेनिक फंगाई एज mycoherbicide. पैथोजेनिक फंगाई एज mycoherbicides. उसमें क्या है Phytophthora palmivora that controls milk weed in orchards. फिर है Alternaria cressa that controls water hyacinth. फिर है Fusarium spp. ये सब फंगाई के नाम हैं that control most of the weeds. फिर बैक्टीरियल पैथोजेंस में आया है हर्बिसाइड. तो ये वाले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बैक्टीरियल पैथोजेंस इस हर्बिसाइड में फर्स्ट है सुडोमोनास दैट एक्ट सेवरल वीड्स. सुडोमोनास क्या करता है सेवरल वीड्स पे एक्ट करता है. सेकेंड है जेंथोमोनास. जेंथोमोनास ऑल्सो एक्ट सेवरल वीड्स. थर्ड है एग्रोबैक्टीरियम. एग्रोबैक्टीरियम एक्ट सेवरल वीड्स. तो कौन कौन से हो गए बैक्टीरियल पैथोजेंस में सुडोमोनास जेंथोमोनास एंड एग्रोबैक्टीरियम. आई रिपीट सुडोमोनास जेंथोमोनास एंड एग्रोबैक्टीरियम. ये हो गए बैक्टीरियल एजेंट्स एज हेर्बिसाइड्स. इंसेक्ट में क्या है एज हेर्बिसाइड. पहला है टायरिया मॉथ डेट कंट्रोल द वीड्स सेनेसियो जोकोबियक. सेकेंड इज कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम that controls cactic weeds. These are the types of weeds. तो पहला है टायरिया मॉथ. टायरिया मॉथ क्या कंट्रोल कर रहा है द वीड दैट इज सेनेसियो जोकोबियक. सेकेंड है कैक्टोब्लास्टिक कैटोरम दैट कंट्रोल्स कैक्टिक वीड्स. तो ये क्या हो गए एग्जाम्पल्स हो गए माइक्रोबियल हर्बिसाइड एंड देयर होस्ट के. फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा हर्बिसाइड का टॉपिक कंप्लीट होता है. वी विल एंड दिस वीडियो हियर. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.